Officially to all of you. I can see many of our honorable faculty here. डॉक्टर शशि भूषण हैं, डॉक्टर सुरभि मिश्रा जी हैं, डॉक्टर चंद्र रानी हैं, अमृता जी हैं, अर्चना जी हैं, वीरेश कुमार साहब हैं, बहुत सारे आप लोग हैं जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, मैं नाम ले रहा हूं, बट बड़ा अच्छा लगा आप लोग से यहाँ पे मुलाकात करके. एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट you all have a very crucial role in transformation of the university campus atmosphere, the ambience, and how we can actually play a role as a faculty in the MMTCC institutions, where it is so important to look at the youth of the country as a very, very important benchmark for the future. एक जो baseline होता है देश का, वो youth होता है, हम सब जानते हैं, और सब मिलकर अगर आज के यूथ को थोड़ा सा और क्लोजली हम समझें, उनको सराहने की कोशिश करें. There are lot of good research happening in our country. That is the best part. Today we are at a junction where India is having great amount of in-depth research on the well-being, behavioral change, positive mental health, and what are the directions and the images that are coming for the future in the minds of children, adolescents, and youth of our country. I'll sincerely request all of you, जितना possible होगा, आप सब अपने videos on रखें, and you are at complete freedom. Please take it as a dialogue, an interactive dialogue. You can interrupt anytime because I have few slides to share. But more than that, I think we are very much comfortable with the idea that let us make it like a dialogue. ये मैं समझता हूँ कि एक गुफ्तगू है और एक चर्चा है. हम क्यों ना मन की चर्चा आपस में मिलके करें और आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो शेयर करना बड़ा वाजिब रहेगा. I'll just show you some slides which are an advocacy towards looking at how we can bring about a change in our country from the mind, mental health, and behavioral aspect of our young people in the universities. 1 minute. We have just a minute. As you all know that today India is amongst the highest population of young people in the world. Nothing less than about 360 million are youth in our country. And that is amongst the largest in the world. Any particular nation that can boast about such a very big population of young people has an advantage as a demographic dividend. हम सब जानते हैं कि बच्चों के साथ थोड़ा बहुत और संभालना और उनको आगे ले जाना कितना कीमती हो जाता है, apart from the qualifications and number of degrees which we carry through life. Looking at adaptation, looking at resilience, and how we look at the overall well-being of the family as well as the campus is a huge debate all over the world, and more so in India because the population is large. We all know that today we are at about 1100 plus universities in the, and if it is coming to a junction where we are also partners in action for the future, it is also important to look at how we can devise new policies, new programs, and new practices to make it possible, isn't it? Just 1 minute. Okay. Okay. Yes. So I think the audio. Are you able to see the slides, all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir. Am I audible to all of Yes, you? sir. Yes, Thank sir. you. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Thank you so much. So what we see here today is a small introduction to the idea, where does India stand with this population? आप सब जानते हैं that we are looking at 18 to 29 population, which is approximately about 356 million. आप देख लीजिए कि कितना बड़ा हमारा उत्तरदायित्व है, हमारी जिम्मेवारी है, हमारे पास responsibility है. And young people in the school,
Young people in the school is no less. Today, adolescents of India is about nearly 32, 33 crores, which is 10 to 19 population, 10 to 18, 19. And then you have 356 million, which is college going and also till the point of their doctorates. So आप देख लीजिए, it's a window of opportunity. It is a demographic dividend. Now, if it is a demographic dividend, that means this population can be utilized for their own welfare, not only given the opportunity and the campus for welfare of their mind, mental health and behavior, but within themselves, they can be guardians, they can be sentinels, and they can be the harbingers of their own life. So human resource का utilization अपने आप के लिए भी एक मौका है, जो बहुत अच्छे मॉडल हमारे कंट्री में उभर के आ रहे हैं. A window of opportunity means for growth and development overall. We all know that we should not worry. We are worried about the overall population, but yes, the window of opportunity is utilize the population. Utilize the population for creating a healthy, happy and harmonious atmosphere where so much of, communication and compassion and collaboration can happen between the youth as part of their project-based learnings and part of their curriculum as well as the growth in their respective subjects. Okay, now if you look at another, there is a debate coming up in overall circles that is there a real need for identifying the population which has a mental health disturbance or a mental health concern? How do we do that? How are we looking at research which tells us what is the degree of the population that needs extra help? 1 minute. I'm just trying to, yeah. Which is same place. So now, reverse time. Yeah, the youth well-being culture is what I'm talking about. We need to now be very sure that if we have to create universities of the future, we also need to be very, very clear that are we doing enough to create a well-being culture in the campus? Because the large population of our young people who are just coming out of the school, they are also affected by the degree of challenges in the university after their school years. We are not looking at enough reasons why there are problems, but you're also looking at possibilities of creating a wellness culture. Youth is the most energetic and productive section of a society. A country's ability and potential for growth, remember, is determined by the size and the strength of its youth population, isn't it? Developing countries and could see a tremendous growth provided they invest in the young people's education, health and well-being. Today's younger generation is tomorrow's innovators, creators, builders and leaders. Remember, this is how the government of India is looking at youth of tomorrow. The youth can be a very positive force for development when provided with the knowledge and the opportunities for the same. None other than Dr. APJ Abdul Kalam spoke about how mental strength is the most powerful source of support when we are going through difficult times. Ladies and gentlemen, today we are at a crossroad. After the COVID-19, the world has seen a great amount of change in the way we perceive social emotional learnings. A lot of time was spent at home. The learnings were a little difficult on the information media, on the social media, and through the technology. But yes, the world came closer, the families came closer. And if we look at what Dr. Kalam told us, when we can find the inner strength to keep moving towards our goal, no matter how difficult the path may seem, we will be a egalitarian society, a society that looks into the supportive needs of each and every human being,
and has an equal representation, maybe the need at that moment young people. And I think every faculty, every university owes it to the young people when it comes to their emotional and social well-being. What is mental health after all? Why the debate in terms of what are we looking at as a additional support system in the university? We always had it, and development always thought from education to development. We brought in the idea about personality development. Well, a report recently, and I have a sincere request, you all can download this report. India has a great amount of responsibility in carrying out some of the very important landmarks of this report. The WHO report of 2022, very recent. It is not about absence of mental health problems is mental health. No, it is a state of mental well-being, one, enabling people to cope with the challenges of day-to-day life. I think our message to each family, a message to each young person who is on the crossroad of embarking on a great journey of life is to realize their abilities to learn well and work well and to contribute to their communities. Mental health is an integral component of health, and well-being is more than the absence of mental disorder. I'm sure we all are agreeing on this. If anybody has their own outlook to a different understanding of positive mental health, you may please tell us when we are sharing some time in the conversations also. So in short, it is very clear. Are we doing this? Can we do this? Or can we enrich this on the campus where we help young people to cope with the daily challenges of life? It could be about meeting new friends, new relationships. It's about the faculty and the student interaction, the mentor and the mentee concept about well-being, helping the families to be in touch with the students. All this will come up in the due course of time and the years to create a very positive, healthy climate on the campus. What are the challenges ahead? After all, we all know that here is a opportunity to bring about a very strong, resilient human being as part of overall development in the universities. We know that schools are very important. When we go to school, we all remember. I think if I can request all of you to recall your adolescent and your childhood for a moment. हम सब उस दौर से गुजरे हैं, हम सब उस पर्टिकुलर चाइल्डहुड और एडोलेसेंस से गुजरे हैं. शायद कोई यहाँ होगा नहीं जिसका एडोलेसेंस नहीं रहा होगा. आप चाइल्डहुड से सीधा अडल्टहुड में तो नहीं आए हैं. और एडोलेसेंट एक ऐसा पीरियड होता है जहाँ पे शारीरिक, मनोदिशा, सामाजिक, एकेडमिक, रिलेशनशिप, all the factors go through simultaneously. We all know that. But when it comes from school to college, you know, that jump from school to college, it has a huge amount of unsheltered atmosphere. We come out from a sheltered, we come out from a scaffolded, protected, parental support, parental care, parental scaffolding happens, and we come out into the larger stream of life, the open arena of life, an unstructured arena of life. And more so, आप बोलेंगे भाई ये तो पहले भी होता था, लेकिन अभी social media, the interconnection of the media, the generative AI world today is an ocean of exposure. That sudden, intensive, rapid exposure to the social and the academic world outside will cause vulnerability to many a population across the millions in the world and in our country also, because we are such a large population of 360 million young people entering the portals, sometimes not even going to the universities or campus, yet waiting to be enrolled. But yes, we are young people. There is an opportunity, but not the opportunity to go. We, as I just mentioned to you, we are a country with great amount of research. The National Mental Health Survey in India, not very far away, told us just about few years back that nearly 10%, अगर आप देखें यहाँ पर 7.39 with a lifetime prevalence of 9.5. Lifetime prevalence of 9.5 means anytime in life, 10% of people will be, young people will be vulnerable to a mental health condition, which is sometimes very difficult to manage. I'm sure आपके तजुर्बे में, आपके माइंड में कोई ना कोई ऐसा कोई किस्सा याद आ रहा होगा जहाँ पे आपने यंग पर्सन से इंटरेक्ट किया होगा, मे बी विद इन द फैमिली, आउटसाइड द फैमिली, इन द कॉलेज, इन द यूनिवर्सिटी. But how do we
come across a situation where we can manage these things. A whole range of issues are seen. We have come across a large spectrum of anxiety, depressive disorders, psychosomatic disorders, obsessive compulsive disorders, and these are now being understood as a scientifically diagnosable medical issue. Just like आपने specific learning disability के बारे में सुना है, हर campus पे, हर school में, हर college में about 4 to 10% of people, all of us, or a mental health concern. How we manage, how we cope up, how we discuss with our near and dear ones, how we get back to work, how we get back to our family life is the challenge of our resilience, isn't it? अब नीचे देखिए, fourth point में ये clear है. While we are in the school, today India is talking about nearly 4% of young people, 7.3 to 14% of young people, apart from substance use, mental health conditions, emotional and behavioral disorders in young people who are in 8th, 9th, 10th, 11th and 12th. And as you come to college, it's about nearly 10%. That is India talking. If it is India talking, then we all need to really get back to our group discussions and university-based discussions in the counseling centers and the student welfare departments and do something about early identification. Young people experience a high rate of self-harm, and you must have come across, there is somehow in the last about 5 years, from 2020 to 2019 to 24, we have seen a greater amount of challenge with self-harming. I'm just running through the concerns we all have come across. I've just consolidated that based on the opinions from young people, from the data that the country has got, and also our experiences from different higher institutions in the country. Mental health is an inherent element of health and well-being. We have all agreed. It is integral. So no wonder inclusive campus जो होता है, जहाँ पे हम लोग सब रहते हैं, हम लोग सब पढ़ते हैं, we all grow together. Inclusive campus. All types of emotions, all types of intelligences coming together and celebrating diversity. That is the beautiful charm of India. Diversity of all kinds coming together. But yes, feelings and emotions and social connections, social connectivity is our mantra. We have to include it as part of our overall health and well-being to grow further in life, to achieve our degrees and post-graduations and doctorates. Mental health problems are very common, more diagnosable, less of stigma. आज stigma कम है, आज थोड़ा कलंक कम है, awareness बढ़ा है. We've had support of celebrities, we've had support, as I just mentioned, from our great role models like Dr. APJ Abdul Kalam. The Honorable Prime Minister talks about Pariksha Pe Charcha with the young people in our country, how to destigmatize the whole idea about marks and examination, how we can transform examination into a culture of celebration, and also how to look at how Man Ki Baat, how we are together as a culture, and how we can celebrate ek dusre ki Man Ki Baat somewhere on the campus also. Well, these are discussions. We have so many Bollywood stars talking about tackling depression, tackling substance use. We have cricketers talking about how to deal with the stresses of life. So in the corporate world, in the glamour world, in the world of our education, politics, and overall support given by great industry, wherever the corporate world is concerned, for promoting the idea about egalitarian, positive mental health society, I think it's time that we give it importance. Half of all mental illnesses, just a consolidation of one line from the mental health report, half of all mental illnesses begin by age 14. That means out of 100 people who suffer a serious mental health condition, the average age would be somewhere 14. So you can understand, ladies and gentlemen, our responsibility towards the youth of India. Unfortunately, most of these cases go undetected, unmanaged, and even untreated because of the lack of facility available. Early detection facility is not available. Maybe in the schools and colleges, the teachers and faculty
not being aware that this can be also identified and referred to the right person in the college or the university, your counseling centers, and wherever need be the professional help. The burden that is associated with mental health conditions, the burden is tremendous, because as I mentioned, discrimination and stigma become a major problem. किसी ने ठीक कहा है, मानसिक परेशानी और बीमारी के अलावा कलंक जो है, भेदभाव जो है, स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा बड़ी बीमारी है. In many situations, mental disorders are poorly understood, rejected, somewhere not accepted as a issue of concern by a young person. And sometimes simple relationships break up because of not being accepted in the larger culture or the group or the gang while we are growing together. Not trying hard enough. The people who suffer are sometimes, apart from the subtle way of bullying that happens, they are considered to be troublemakers or not working hard enough. Mental health conditions are treatable. The latest that is happening in the world research, the brain research, today we talk about the happy hormones, we talk about dopamine, we talk about oxytocin, we talk about serotonin, isn't it? We talk about the reward hormone when we feel recognized, when we feel somebody is appreciating me, recognizing me, rewarding me by good words, complimenting me for my little effort. There is a surge of dopamine. The love hormone, the feeling of care, love, compassion, affection, it has a neurochemical basis. People have been found to have higher levels of oxytocin. Serotonin is a mood stabilizer. Serotonin helps in helping the people go through little ups and downs, but being able to catch oneself in the regular roller coasters of life. Now, these are improving research, enhancing, upscaling research that is telling us that these are not purely psychological issues. They are neurobiological issues affecting our mindset, our thinking, our emotions and feelings. A lot of research is done at your institutes. A lot of research is done at the IITs, NITs. A lot of research is done at the biomedical engineering departments across the world, in India also, helping people to understand what can be done to improve the feelings. This SLD, the specific learning disability, as I was just mentioning to you, remember, ladies and gentlemen, is about a wiring issue in the human brain. It is in some cultures not even considered to be a disorder. We all know that Albert Einstein went through the difficulty of word recognition and writing alphabets and names. But yes, we have stalwarts in science like him. He is himself one of those most remarkable human beings with a great achievement in science. So many are there. We should not, first of all, look at it as an area that can be ignored, rejected, condemned, or discriminated. First and foremost, empathy, our own self-awareness, the fact that we all need empathy for greater achievements and movements in life. We are also looking at how these are treatable. A lot of effort has gone into looking at just like आप देखिए, आपके पास रोजाना हम सब जानते हैं, we all come across खांसी, बुखार, नसला, all types of fevers we have. If I'm sitting in Delhi, I know that this season, coming monsoon, will be vulnerable with swine flu, with chikungunya, with all kinds of dengue, and many other fevers. We all know that communicable disorders are so common. Why lifestyle disorders, hypertension, diabetes? We are looking at these as common day-to-day urban challenges. Mental health conditions are part and parcel of growing up. If we accept that feeling low, feeling down and out, feeling sad, or feeling helpless or hopeless at a time in life with a few days, 14 days, 20 days, is not to be ignored. We need to get closer to our family members who go through this. We need to appreciate, give a jhadu ki chhappi to people who are going through these and help them in the college and the universities. We can save thousands of lives. We can save thousands of people from becoming victims to rejection, discrimination, and suffering unnecessarily in the long run to create a larger data for the country, which is very sad. Even in high-income countries, let me tell you, we are no way far behind. In the high-income countries today, let me tell you,
mental health is a huge crisis. Some of the governments across the world, in the Western world, tell us that mental health conditions are sometimes going to be a bigger challenge for bringing about change or treatment or recovery than the people who suffered COVID. And nearly 50% of the people with depression, as I'm just mentioning here, do not get any help. I'm sure you must be having some thoughts on this. If you are wanting to please share anything right now, अगर आपको ये issues and concerns के बारे में कुछ याद आ रहा है, I'll be most happy to hear your experience and comments if one or two can share with us here. Anybody here, sir? Wanting to, before we come, we'll at another few moments from now, we'll open the house for discussion. But you would like to share anything on the journey of the issues that are emerging and how we are placed as a country to bring about campus or a family where we can actually care for ourselves and the people and the young people around us. Anybody, sir? Should we go ahead? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Right, sir. Yes, sir. So, what are the actions then required? Yes, sir. We are already having a great Yes, amount sir. of support. The government has created Yes. a lot of timely regional and central support systems to help education actually take on the lead to bring about responsible campuses, responsible schools. You'll be happy to know that since we are working both in the Yes. school education and the higher education, today India has about 15 plus or 16 plus lakh schools, of course, but we do not have counselors. We do not have counselors. There are great amount of efforts being put in by the Central Board of Secondary Education to have at least one school counselor who can help the teachers. Remember, teachers are our best support for promoting mental health. Faculty is our best support. Faculty is the best first aider, the immediate help for identifying, for supporting, for handholding, for shouldering, for a mentor-mentee relationship. The counselor is always there to help in scaffolding some of those issues, concerns, programs, practices, and cases where an additional help, an additional support system is required. We'll just talk about that also. So governance and policy has already taken shape. The government policy plans and laws need to incorporate primary care for mental health as a part of universal health coverage. कहने का मतलब ये हुआ, you all have a campus where there are health support systems. You all have a campus where there are support systems for student grievances. You have cells for non-discrimination. Why not for helping people with positive support for their mind, mental health, and emotional well-being? Whenever there is a need, maybe I'll need support of my faculty, my counseling center, my friends. So can we not have a more judicious and a robust system where facility at any point of time, at any stage of time, whenever I need help, as part of my universal well-being coverage in the campus? Well, the faculty has the university faculty, whoever they may be, whatever background, from whoever, want to be the best people who can actually be the first contact person since you take lectures, since you interact with students, and then identify those who are slightly away from the usual mood for some time, for some days. And these are constantly happening movements in the campus where we can actually first identify. The financial and human resources are enough to help mental health matching the burden of disease that mental health contributes to. We have to understand that before problems become disorders, before difficulties become diseases, before challenges become resignation to life or self-harming, I think empowering and engaging individuals and communities is very important. So this orientation program, more than training, I call it the orientation program, is actually a drop in the ocean where you are the leader, you are the mentor, you are the crusader to bring about impressing upon the university competent authorities, the dean, the vice chancellors, to actually bring about noticeable, visible, measurable
centers of excellence in counseling, centers of excellence in faculty orientation for positive mental health, resilience, and well-being, interfaculty interaction about a happiness culture. Why not? There can be days where interfaculty days can be celebrated, and design the models of care in a different way. There are so many. I remember a institution talking about the happiness corners, where your friends corner, a happiness corner, or a darbar with the faculty, a student darbar with the faculty very often once a month. And similarly in schools we have seen having peer-to-peer darbar, peer-to-peer interaction and celebrations, where student to student interaction about life, health, well-being, resilience, mental health is taking shape. So beyond their academics, beyond their subjects, beyond their day-to-day demands to academic, the entrance exams, they talk about life also. There is a stipulated period for that, or maybe go to the auditorium, go to the open ground if the weather is good, and let's talk about life, emotional well-being, how we can play a little mentor for each other, whether it is faculty to student or student to student, or even inviting the families and the grandparents to visit the campus, create an ambience of conversation, compassion, and well-being. So redesigning the models of care, and please collect these models. These models can be documented. The time is coming that exemplars will be developed. Exemplars will be developed and good practices will be developed. They're already happening. They are being consolidated. The ministry is looking at consolidating some of the good models of care and compiling them for the larger utility as a model of care by any university across the country. Even the schools might follow it, because, ladies and gentlemen, we cannot separate schooling from university education as a human development course, as a lifespan from childhood to adolescence, and adolescence to youth, and youth to a middle-aged adult. They are a continuum, they are a journey with many stations in between. The train has to go on, isn't it? So we need to create an enabling environment. We need to create a redesigning models of care, a coordinated response between the campus, between the administration, the faculty, the counseling center, the student council. They can work excellent. Where let's declare it as mental health for all, emotional well-being for all. Anybody, the family of the faculties, the family of the students, if they want to come and visit, they want to get some help from the counseling center, why not? Each student's family is part of the university. It's a larger extended university in every family if the students are studying. So just like the community health workers, the volunteers in our country, why not volunteer peer educators, volunteer faculty, and other stakeholders, the administrative faculty looking after administration, as by rotation, work together to improve the access and the quality of mental health care through the primary care. Primary care is the one which is basic minimum community care at the basic level. We know we have counseling center, we have the professionals, we have the psychiatrist, and we have the other people who are partners here. But we also need to be very, very sharp in appreciating that why every human being by rotation cannot be involved in this care, isn't it? So we next move on to the idea that how scenario has changed. I'm just telling you, you've already seen this, no more data required. But today, read the second line. This is the world report coming in. 18% of the global depression and 15% of the global anxiety disorders are contributed by India. Out of 970 million people across the world, 18%. You can imagine if 100 students, 100 families, out of them, 18 will need your immediate urgent help. So on the right bottom, if you see, you already have this PPT with you. I'm trying to explain the mammoth task that we all have. Mental health conditions account for 16% of the global burden of disease. If there are 100 challenges, we have 16% only mental health challenges, and road traffic injuries and drug abuse goes much higher than. So this is only another new research which has come. We heard about this, I just mentioned to you, so I'm not going to much detail.
It is the most common specific learning disorder is dyslexia, and we all know that this is not about so much of a disorder. It is a disability because it needs extra help. It needs extra time. It needs your psychosocial support. The children and the students are average or above average intelligence. It doesn't suffer their IQ. But yes, the emotional quotient, emotional intelligence may sometimes suffer for not being able to cope up with the perception of what is learned and the reproduction on the paper. So the difficulty is to transmit the learned knowledge on paper, and therefore immense amount of support can be given, the confidence can be given, though a little slow, but the answers go through well. In short, this is what we're talking about. Remember, learning disabilities are not essentially only mental health issue. They are a neurobiological issue, and it can affect many other processes like the language processing, the phonological processing, the motor recognition, the memory and attention. So anybody we come across who has a learning difficulty, let us ensure, even if it's a child at home or an adolescent at home, the assessment by a mental health professional is important so that we don't miss out the specific learning disability and just label it as a dropout from the school with mental retardation or any other problem. Learning disabilities are unique problems and they need to be handled uniquely. And the classical and the most common of them is dyslexia. You see here, you have a little bit of a variation in how we look at the typical dyslexic brain and the regular brain. Sometimes the difficulty is not so much about perceiving and interpreting knowledge, it is the reproduction on paper. The brain, eye, and the hand coordination is somewhere the wires are not so effective. So sometimes children go through difficulty in expressing. No doubt the system offers, as part of the PWD provisions in India, an extra time during exam, and at times, maybe if necessary, relaxation of certain subjects and the modified questions also. So if you move ahead now, we are looking at, can I request one of you to please read this for us? If you can put on your mic and kindly read this. Anybody? Yes, sir. Yes, ma'am, please. And I would like you to give your interpretation and your experienced answer to this, ma'am. Please go ahead, ma'am. Sakshi is 21. Sakshi started showing suicidal behavior. Her professor has noticed that her drawings are often dark with depictions of dead and injured people. There was no previous record of any problems. Sakshi parents were contacted and came in for an interview. Parents shared that Sakshi being referred to a counselor to help Sakshi express her feelings and manage her depression. A plan was put in place to identify peer mentor in the institute who could help Sakshi when she feels upset and provide a safe place for her to go. Parents were provided with some suggestions for helping Sakshi at home. Sakshi's behavior improved and she used the resources available to her. Thank you so much, ma'am. Thank you. Yes, ma'am. Kindly tell us your what came to your mind, ma'am? What came to your mind when you were reading about Sakshi's case? सर सबसे पहले तो सर हमें एक तो प्रॉब्लम यदि डिटेक्ट हो जाती है देन वी हैव मेनी चांसेस टू क्योर दैट. जी मैडम, आपको जरूर कोई ना कोई याद आ रहा होगा मैम, कोई भी आपके इतना तजुर्बा है आपका एजुकेशन फील्ड में, कोई बच्चा जिसने आपकी मदद मांगी और आपने जरूर बहुत अच्छे तरीके से सहारा दिया होगा. हाँ जी मैम. सर इस समय तो नहीं ऐसा कोई याद आ रहा सर. अच्छा, कोई ऐसे सिर्फ ऐसे ही नहीं, कहीं भी कोई बच्चे जो अपने आप से कई बार हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, या अपने आप से उनको लगता है कि पढ़ाई मेरे से कोप अप नहीं हो पाएगी, कोई ऐसा आपको कभी तजुर्बा रहा हो जिससे आप वाकिफ हो? अब एक हमारे पास, अब देखिए आगे और चलते हैं, ये भी एक बार जरा पढ़ लेते हैं, दोनों केसेस एक बार फिर डिस्कस करेंगे ब्रीफली. यस मैम, प्लीज गो अहेड.
Okay, sir. Case study. Garima was used to see both her mother and grandmother enjoy chewing tobacco regularly. When she turned 21, she felt that she was old enough to be chewing gutka, tobacco, and pan. Along with them, Garima knows that corner shopkeeper stocks gutka and she buys it from him. And now points to discuss. Using the above case study, establish the role of family in initiating children's substance misuse. Okay. Why do you think Garima should listen to her mother and resist the temptation of pan and gutka chewing? थैंक यू मैडम। अब साक्षी के केस में और गरिमा के केस में आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा मैम? दोनों किस जगह पर हैं जिंदगी में? आई मीन आप कुछ कॉमनैलिटी और एक दोनों में विशेष अंतर क्या दिखाई दे रहा है? सर ये सेकंड वाले में तो जो हम देख रहे हैं पेरेंट्स को एक्चुअली में वी आर जी डन बाय So we are looking at both of a common age group. इस एज ग्रुप में कहीं ना कहीं अपने वातावरण की वल्नरेबिलिटी जो होती है, वातावरण हमें कई बार कमजोर कर सकता है, आप ये मानते हैं, है ना? So age is also the common issue. Which one, ma'am? Can you repeat, ma'am? Sir, both are 21. They are young. Yes, very good. Age is common in both the cases. So what is common about the factor in this age group? Both, yes, ma'am. What is common? What can be the passing time of this particular age group Sir, emotionally? it is age of learning many kind of changes in life. Yes, wonderful. Okay, Gender is common gender. common gender. Okay, yes. Emotional dependence on others, society, What? family. Role modeling on the family, isn't it? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बिकॉज हमारे मार्गदर्शक हमारे लिए मैटर करते हैं क्या? हमारे घर में जो मार्गदर्शक हैं, साक्षी के केस में देखिए जब पेरेंट्स को बताया गया तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं उनको भी लगा कि बहुत जल्दी ये अपने आप से अकेलेपन में चली जाती हैं। बट यू ऑल एग्री मैम, समवेयर ड्यूरिंग द स्कूलिंग ईयर्स और इन द अर्ली फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज, many of them, thousands of them have certain symptoms which somehow get ignored, and when the families leave their students in the hostels or in the college life, जो स्कूल में बातें थी, जो बच्चे के इमोशनल पर्सनालिटी में बातें थी, वो कई बार कॉलेज में पेरेंट्स की तरफ से पहुंचती नहीं है, because there is hardly any interaction between the parent and the college faculty. So we see a sudden rise. You'll be surprised to know जो सेल्फ हार्मिंग है या अपने आप से फना हो जाना या अकेले हो जाना, ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बीच में हम ज्यादा देखते हैं कॉलेजेस में कंपैरेटिवली। और एक होता है फाइनल ईयर में, जब जॉब की प्लेसमेंट का टाइम आता है, पीजी के आगे क्या करना है फेज आता है, उधर जो अपनी आइडेंटिटी होती है, जैसा आपने बताया कई चैलेंजेस होते हैं, सोशल आइडेंटिटी है, पर्सनल आइडेंटिटी, वहां का चैलेंज कई बार बच्चे सहन नहीं कर पाते हैं। जॉब के प्लेसमेंट में, खासकर प्रोफेशनल कॉलेजेस में, अगर सही दिशा में कोई जॉब या करियर का ओपनिंग नहीं होता है या पीजी नहीं मिलता है, आप देख लीजिए, तो इतना जल्दी अपने आप को फेलियर समझने बैठते हैं। सो वी सी टू डिफरेंट एज ग्रुप्स, वन इज द 18-19 and one is about 21-22, between the first second year and the fourth and the PG year. There are two populations हम देख रहे हैं जिसमें vulnerability इमोशंस के लिए और सब्सटेंस मिसयूज या यूज के लिए बहुत ज्यादा हो रहा है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप देखिए कि यहाँ पे अगर हम पीयर ग्रुप को थोड़ा और क्लोजली लेके आए मेंटल हेल्थ के अंडरस्टैंडिंग में, खासकर इनके साक्षी के केस में तो ये बहुत क्लियर हो गया है दैट somewhere she was not able to connect with her friends also, and family probably did not get to know, in spite अगर वो टच में रहे, बातचीत करते रहे साक्षी के साथ, तो उनको शायद उतना इजीली पता नहीं लग रहा था कि साक्षी के साथ क्या हो रहा है। तो बाद में जब उनको प्रोफेसर ने नोट किया, उनकी फैकल्टी ने, जैसे आप सब हैं, तो उनको शायद पेरेंट को कांटेक्ट किया जाए और फिर उनको इन्वॉल्व किया जाए, बिकॉज किसी भी रिकवरी में संवाद बहुत जरूरी है, एम्पैथी जरूरी है, यानी कि विनम्रता और संवेदना बहुत जरूरी है।
और कहीं ना कहीं ये बातें जो पहले हो सकती थी अब हम साक्षी की लाइफ में दोबारा लेके आ रहे हैं। तो ये वाला केस ये साबित करता है कि लोनलीनेस जो होता है ना वो डिप्रेशन से और ज्यादा खतरनाक होता है। कहते हैं कि अकेलापन जो है वो उदासी से और ज्यादा खतरनाक है। अकेलेपन को अडॉप्ट कर लेना तो Yes, sir. वो बातें जब कॉलेज में हम देखते हैं कुछ बच्चे मायूस जिंदगी जी रहे हैं, अटेंडेंस कम है, ये हमारा फिर उत्तरदायित्व बनता है कि चलो भाई एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाए, हर क्लास के पहले कहीं ना कहीं थोड़ा उल्लास की, हंसी मजाक की बातें भी हों, जिंदगी के बारे में बातें हों, ना केवल हम अपने सब्जेक्ट की बातें करें। स्कूल टीचर्स को भी अब ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि भाई 35-40 मिनट के पीरियड के अंदर आप एक लंबी गहरी अच्छी सांस लेने की तरकीब बच्चों को दिखाइए, क्योंकि जब हम बहुत दिल खोल के सांस लेते हैं तो हम खुश भी होते हैं। और कहीं ना कहीं कोई बच्चे की अपनी कहानी, कोई बच्चा आज की जिंदगी के बारे में आज जो उसने अखबार में पढ़ा होगा या कोई अच्छी कविता होगी, वहां से हम क्लास शुरू क्यों ना करिए। हम फिजिक्स के टीचर हैं, हम मैथ्स के टीचर हैं, लेकिन क्यों ना हम जिंदगी की बातों से क्लास की बात शुरू करें। मानते हैं कि सिलेबस बहुत ज्यादा है, लेकिन सिलेबस पूरा करते करते हम कहीं ना कहीं एक दूसरे को फना ना कर दें इमोशनली। ये एक सीख है जो हम सबके लिए लागू होती है। अब ये देखिए, जो मैं सिर्फ ये केस इसलिए दिखाना चाह रहा था कि इस वक्त हमारे देश में सब्सटेंस यूज का एक बहुत बड़ा, मतलब आप समझ लीजिए कि एक सागर फैला हुआ है, महासागर। और वो आप जानते ही हैं, सबसे कॉमन सब्सटेंस क्या यूज होता होगा हमारे देश में, आप बता सकते हैं, जो युवा वर्ग जिससे पीड़ित रहते हैं? कोई नाम बताइए। सर पान गुटखा। वेरी गुड। Sir, drugs. अल्कोहल सर। ये तो कानूनी तौर से अवेलेबल हैं। ये तो आप बाहर निकलेंगे किसी भी जगह से, सड़क पे पान गुटखा मसाला और रजनीगंधा ये सब मिलेगा ही। और शराब Sir, drugs, sir. Drugs. हाँ, ये भी नशा है, ये भी बुरे ड्रग्स हैं, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन ये सोशली और लीगली अवेलेबल हैं, और हम उसकी भी बात कर रहे हैं जो बहुत ही खतरनाक नशे हैं जो इलीगल हैं और सोशली अवेलेबल नहीं है। हिंदुस्तान में सबसे कॉमन तो गांजा है, क्योंकि Yes, sir. यहाँ उगता है। यहाँ कश्मीर से अरुणाचल की जो बेल्ट है, जो हिमालयस की बेल्ट है, वो दुनिया में सबसे ज्यादा गांजा का पौधा उगाता है। इसलिए कंसर्न हमारे देश के लिए ज्यादा है। और गांजा, चरस और हैश ये सब उसी से निकलते हैं। आप सब जानते हैं भांग भी इसी से निकलता है। जो भांग Yes, अक्सर sir. Yes, sir. त्योहार में लोग लेते हैं, वो लेकिन बड़ा हल्का होता है, वो इसके पत्तों में होता है। भांग, गांजा, चरस और हैश 4 चीजें हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा आपको यही मिलेंगी, क्योंकि यहीं उगते हैं। और हमारे युवा वर्ग मानसिक रोगी भी कई बार इन्हीं चीजों से, इन्हीं सेवन से बन रहे हैं। कई सारे हाँ, हाँ, ज्यादा एनीथिंग मात्रा व्हाट बताइए। सर, ये बहुत ज्यादा मात्रा में यूज भी किया जा रहा है। गांव-गांव में बच्चे अक्सर हर दूसरा तीसरा बच्चा आजकल नए जो यूथ्स हैं वो मिल जाते हैं, ऐसे चीजों को यूज करते हुए दिख जाते हैं कहीं ना कहीं। आप ये कहना चाह रही है कि मैम छोटे बच्चे भी इस्तेमाल कर रहे हैं, 9-10 साल हाँ के सर, बच्चे भी? बच्चे जी, गुटखा या गांजा, बहुत सारे बच्चे दिख जा रहे हैं सर। बिल्कुल आपने ठीक कहा मैडम। आप Yes, sir. जो लेबर क्लास के बच्चे हैं वो सब यूज कर रहे हैं, जो बिल्कुल, लेबर का काम कर रहे हैं सर। खासकर जो गैराज वगैरह में काम करते हैं, साइकिल Yes, शॉप sir. पे Yes, काम sir. करते हैं ना, Yes, sir. Yes, sir. आपको Yes. मैं ताजुब होगा अगर मैं बताऊं तो शाम को बच्चे जब ये थक जाते हैं, वो पंचर वंचर बनाते हैं ना, रबर को गर्म करके जो उसका धुआं निकलता है ना, जो ट्यूब होता है, टायर जो होता है, उसका धुआं इनको बड़ा इंटॉक्सिकेटिंग लगता है, इसलिए। और ग्रीस होती है, ऑयल होता है, पेट्रोल होता है, जिनको आप स्पिरिट पे यूज करते हैं, वो स्पिरिट आता है जो काफी हाँ जी सिग्नल्स पे देखते हैं हम। क्लीनर जो होता है, इरेजेक्स जो होता है, वो पहले बहुत यूज होता था। फेविकॉल ट्यूब सर केरोसिन भी पी लेते हैं। स्टेशन में बहुत ये लोग करते हैं, फेविकॉल ट्यूब से ये लोग नशा करते हैं। कौन सा ट्यूब है सर? फेविकॉल टब, सर, फेविकॉल जो फेविकॉल। गाम Yes, होता sir. है Yes, sir. Yes, sir. फेविकोल का भी सर बहुत नशा है। सही कह रहे हैं आप। सर और ये डेनराइट सर। हाँ जी सर मैम। केरोसिन का भी इस्तेमाल करते हैं। हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इनको सर वोलेटाइल सॉल्वेंट बोलते हैं, जैसे ऑर्गेनिक मतलब कार्बन कंपाउंड्स है ना, ये जैसे आपको याद होगा कि पेट्रोल की स्मेल सबको बड़ी अच्छी लगती थी एक जमाने में। हम लोग भी याद है कि स्कूटर में हम लोग पेट्रोल की स्मेल सुनते थे, बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन इतना बुरा नशा है
आप ग्रीस है, ऑयल है, इसको गर्म करके छोटे छोटे बच्चे जो चाइल्ड लेबर में हैं, अनफॉर्चुनेटली उनको कोई रोकने के लिए कोई शिक्षा ही नहीं है। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जब शुरुआत वहां से होती है, फिर पान और गुटखा तो दूर रहते ही नहीं है, वो बीड़ी पान सिगरेट तो मिल ही जाता है। अल्टीमेटली जब ये बड़े होते हैं थोड़े से, तो 13-14-15 साल की उम्र में, जिसको आप देखे होंगे कई बार, उसको उत्तर भारत में चिट्टा कहते हैं। चिट्टा होता है वो, जैसे उसका बनता है पेस्ट बनती है। तो ये गांजा, चरस, ये सब चीजें गलत तरीके से उसको मिक्स करके बनाया जाता है, और ये बच्चों में मानसिक रोग बहुत ज्यादा होता है। तो कॉलेज के बच्चे भी इस्तेमाल करते हैं। फिर अब आपने सुना होगा कि महानगरों में ये वेप सिगरेट जो आ गई हैं, जो ऑटोमेटिक सिगरेट है, मशीन से चलती है, आपने सुना होगा जरूर। तो उसका इस्तेमाल बड़े बड़े कॉलेजेस में कई बार होता है, और बच्चों में डिप्रेशन, एंजाइटी उससे रिलेटेड भी काफी सर पाया कॉलेज जाता के बाहर बच्चे नशा जी, सर। करते मिलते हैं सिगरेट का ज्यादातर। है। जी सर। और लड़की भी सिगरेट पीने लगी है सर। मैडम बहुत है, लड़के लड़कियां दोनों। कहीं रेस्टोरेंट नहीं जा सकते हैं हम लोग, फैमिली में एक साथ नहीं जा सकते, बच्चों हाँ को जी, जा सकते, कहीं पार्क वार्क कहीं नहीं लेके जा सकते हैं। हाँ, सभी बिल्कुल सही। ओपनली, तो अभी फैशन हो गया है सबका। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। खासकर वो जो वेब सिगरेट है ना, बड़ी महंगी भी आती है, तो उसको 2-3 दिन तक बच्चे लेते रहते हैं। और आप सही कह रहे हैं कि वो कभी कभी तो मार्केट में भी लड़कियां देखते हैं सिगरेट पी रहे होते हैं। तो ये चीजें सर स्कूल चिल्ड्रन भी ले रहे हैं। सर मैंने एक अभी बच्चा वही। था जो सबसे केवल 5 रुपए मांगता था सर वो, तो और उससे हाँ जी। वो फेविक्विक लेता था, उससे नशा करता था। और अगर उसे कोई मना करता था तो बहुत एग्रेसिव हो जाता था सर, 5 रुपए की केवल। तो आप माहौल बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी 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 सर। इसीलिए देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये सर, जानकारी दी, और आपने समर्थन इस बात का लिया है कि अगर सर 9-10 अभी साल का डर बच्चा। लगने लगा है। हाँ जी। अपने अपने बच्चों के लिए डर लगने लगा है। अभी क्या होगा उन लोगों का भविष्य? ऐसा बिल्कुल। जनरेशन ऐसा हो रहा है जैसे उन लोगों का क्लासमेट के साथ भी कैसा होगा, कैसा ग्रुप होगा, कुछ या नहीं पता चलेगा। तो हम लोगों का बच्चों का भी क्या होगा, वो मतलब सोचने से भी डर लगता है। अभी बहुत खराब हो गया है जमाना। अभी यही बात तो है मैडम, मेन। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो फिर वही है कि हमें सतर्क रहना होगा, हमें सतर्क। जानकार रहना होगा, हमें बच्चों के साथ लगातार संपर्क में रहना होगा, और उनकी उनकी जिंदगी को सलाह देते हुए, हम जासूस तो नहीं बन सकते ना उनकी जिंदगी में, हम जी लेकिन हाँ। सलाहकार जरूर बन सकते हैं, समर्थन जी। जरूर दे सकते हैं, और उनके साथ सार्थक बन सकते हैं। और उनको ये भी दिलाना कि भाई, सर मैडम, रिसर्च ये बताती है कि जो बच्चे थोड़े से अकेले जिंदगी बिता रहे होते हैं, खासकर जब माँ बाप दोनों काम कर रहे होते हैं, घर में बच्चे अकेले होते हैं, तो कई बार जी। उनकी फीलिंग्स जो होती हैं बड़ी जल्दी लाइफ में थोड़ा अकेलेपन में या मायूसी में चली जाती हैं। तो एक्सपेरिमेंट करने का मौका भी ज्यादा मिल जाता है। तो हम तो इतनी कोशिश कर सकते हैं ना कि उनकी जिंदगी में कहीं वार्तालाप मेंटेन रहे, कोई ना कोई। अब देखिए, आज आज मैं मनोचिकित्सक हूं, और आपको बता दूं कि आज दोबारा जरूरत लोगों को पड़ रही है कि भाई अपने दादा दादी, नाना नानी को अपने साथ ही रखें, और जी, अपने घर जी। में एक माहौल आपस का प्यार मोहब्बत का बना के रखा जाए, क्योंकि जिन जिन घरों में बड़े लोग रहते हैं। जी सर मैम। जॉइंट फैमिली हेल्प करती है सर इसके लिए। जॉइंट फैमिली जो अब बिल्कुल बहुत कम देखने को मिलती है, हाँ जी, तो ये बहुत बड़ा रोल था जॉइंट फैमिली का। बहुत आज अच्छी बात के है। सोसाइटी में बहुत कम देखने को मिल रही है, जिससे कि बच्चे पर सबकी नजर रहती थी सर। अगर पेरेंट्स जॉब भी कर रहे हैं तो दादा दादी और जो चाचा चाची, जो लोग घर में रहते थे वो देखभाल कर लेते थे। लेकिन आज बहुत बच्चा फिर बुरी संगति में चला जा रहा है सर, घर नहीं होता है तो। बिल्कुल ठीक बात। सब पेरेंट्स को बच्चों संग फ्रेंडली होना चाहिए, हाँ जी मैम, बिल्कुल यही तो हम जिससे कह रहे हैं। कि जी सर, बच्चों को पेरेंट्स संग फ्रेंडली जब रहेंगे तो बच्चे अपनी सारी बात शेयर कर सकेंगे, तो डिप्रेशन और इन सब चीजों की तरफ नहीं जाएंगे बच्चे। आप जी बिल्कुल ठीक कहते हैं। मैं तो क्या हमेशा कहता हूं कि, और आप भी शायद मानेंगी, कि जब बच्चा, एक 9-10 साल का बच्चा अगर मायूस है और उदास है, तो उसके अकेले जिम्मेवारी कैसे हो सकती है अपने यस। फीलिंग्स की? उसको माहौल ही वैसा मिल रहा है जहाँ पे वार्तालाप घर में है ही नहीं, और पर्सनल लेवल पे और फैमिली लेवल पे डिनर भी, मैडम रात का खाना भी मिलके नहीं बैठते हैं लोग, तो फिर कब बातचीत करेंगे? यस सर सर। मोरोवर सर, जो आजकल टेलीविजन और फिल्म्स में इस चीज को सर बहुत ज्यादा एक हीरोइक वे में दिखाया जाता है, वो भी बच्चों की साइकोलॉजी पे बहुत बड़ा इफेक्ट डाल रहा है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली।
आप देखिए ना, आप जैसे सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम है, बच्चे ये बताते हैं कि वो कोई भी अपना फीलिंग्स का कोई अगर ऐसा एक कमेंट भी देते हैं तो उनको आधे घंटे के अंदर मैडम उनको 100 अप्रिसिएशन मिल जाते हैं, 50 लोग उनकी तारीफ कर, अरे क्या लिखा, बड़ा अच्छा था, ये तो बहुत, वो उनको रिकग्निशन, यानी कि अंग्रेजी में जैसे हम कहते हैं ना कि वैलिडेशन लाइफ में नहीं मिल रहा है। वैलिडेशन मतलब छोटा सा भी अगर मैंने एफर्ट किया, मैंने स्कूल में किसी इवेंट में पार्टिसिपेट किया, मैं स्टेज पे गया और मुझे उम्मीद है कि भाई मेरे पापा या मेरे चाचू मामू मेरी तारीफ करेंगे, वो नहीं मिलता है उनको सही टाइम पर। वो अगर सोशल मीडिया में मिल जाता है ना तो अट्रैक्शन उस तरफ ज्यादा हो रहा है, फेसबुक पे और इस पे और इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे। ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि छोटा सा भी कदम बच्चे का, छोटा सा भी कदम मेहनत का, उसको उल्लास के साथ अप्रिशिएट करिए, उसको अपनी जिंदगी का निजी हिस्सा बनाइए और बच्चे के साथ पार्टिसिपेट करिए। मैं तो हमेशा पेरेंट्स को कहता हूं कि आप बच्चे के साथ बच्चा बन जाइए, बच्चे के साथ बच्चे की जिंदगी में शामिल हो जाइए, क्योंकि गिन चुनकर ये 7-8 साल हैं जो जिंदगी का पूरा नक्शा बना देते हैं और जैसा आपने कहा मजबूती ले आते हैं कि कोई भी तूफान जिंदगी का उनको नशे का हो या रोगी का हो, मानसिक समस्या को उनको हिलाता नहीं है। फिर बहुत आप लोग सही। है ना, आप लोग ने बहुत लोग देखे होंगे जो बहुत टफ होते हैं, वो कहाँ से बन के आए हैं, आप खुद ही होंगे, कहाँ से बन के आए हैं। आपने ठीक ही कहा ना कि पारिवारिक जो मैन्युफैक्चरिंग है हमारे मन की, वो स्ट्रांग नहीं है अभी, वो थोड़ी कमजोर होती जा रही है। ये जो आप देख रहे हैं सामने, दिस इज अ कर्व while we are in the college, ये सब इमोशंस हमारे साथ होंगे, ये सारे इमोशंस हमारे साथ निकलेंगे, हमारे साथ चलेंगे, लेकिन हम क्यों घबरा जाते हैं? बिकॉज हमारे पास कहीं ना कहीं कोई सहारा नहीं मिलता है, हमको कोई ना कोई एक बातचीत या संपर्क या विवाद नहीं मिलता है, तो बच्चे फिर हताश होने लगते हैं। मैंने ये ऑलरेडी आपको बताया है एंड थैंक यू, आप लोग ने बहुत अच्छा शेयर किया कंसर्न के मानसिक प्रवृत्ति, मानसिक ऊर्जा और मानसिक बीमारियां कैसे नशे से भी पीड़ित होती हैं और एक अकेलेपन में जिंदगी बिताते बिताते या सहारा ना मिलने पर भी बच्चे उसके शिकार हो जाते हैं। Sir, I have one more thing to say. सर Yeah. कभी कभी क्या होता है जैसे कि जो पेरेंट्स होते हैं वो खुद अपनी वर्क लाइफ में इतना स्ट्रेस्ड होते हैं कि वो अपना फ्रस्ट्रेशन आके घर पे निकालते हैं। मैं ऐसे कई स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं कि वो उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट नहीं करते या उनका माहौल बहुत खराब होता है, तो वो भी एक रीजन होता है बच्चे के लिए। मैडम आपने बहुत बहुत खूब कहा एंड थैंक यू सो मच। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बाहर के तनाव अपनी जिंदगी के रोज के गतिविधियां जब मम्मी और पापा घर लेके आते हैं तो बच्चा ये भी जानता है कि मम्मी बहुत थकी हुई हैं, पिताजी भी बहुत परेशान हैं, लेकिन अनजाने में हम बच्चों पे बरस जाते हैं, क्योंकि वो कहीं पे जो बातें हम अपने व्यवसायिक जीवन में बाहर नहीं कर पाते, कोई मन की दबी हुई बातें होती हैं, वो घर में अनबन या किसी तरीके की मुठभड़ बन के बाहर आ जाती है, कुंठा बन के आ जाती है, फ्रस्ट्रेशन बन के आ जाता है। एंड यू सेड वेरी राइटली मैम, चिल्ड्रन आर अ विक्टिम टू दैट। और उनको लगता है कि भाई मेरे पास कितने बच्चे आते हैं मैम, आज ही मैंने 2 बच्चे देखे हैं दिन में सवेरे, जहाँ पे उनको ये लगता है कि भाई अगर माँ बाप की तबीयत ठीक हो जाए तो हम सब ठीक हो जाएंगे, बिकॉज बहुत कुंठा में रहते हैं, पापा मम्मी परेशान रहती हैं कि घर के काम, दफ्तर के काम। तो ये बात आपने सही कही, लेकिन आप बताइए, आप अपने मन से बताइए कि इसका वर्केबल समाधान क्या है? क्या हमको अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए कुछ क्षण निकालने नहीं चाहिए? कुछ हमको अपने लिए जो इस युग में अभी योगा दिवस आने वाला है, पूरे विश्व को हमने योगा दिया है, आराम की परिस्थिति इंडिया ने बनाई है, तो क्या हम अपने जीवन में 10-15 मिनट दिन में 2-3 बार नहीं निकाल सकते? कभी-कभी सर हमें माइंडफुलनेस fun, की क्यों नहीं पूरा सर, ध्यान देना definitely. चाहिए। माइंडफुलनेस लोग अपने लिए सर अगर 10 मिनट 15 मिनट भी डेली का योगा करेंगे तो हाँ। वो थोड़ा मेंटली स्ट्रांग होंगे, तो वो एक वर्क लाइफ बैलेंस बनाना सीखेंगे कि वो बाहर का फ्रस्ट्रेशन घर पे लाके ना निकालें। बिल्कुल। और ये बातें बच्चे बड़े गौर से देखते हैं। और आप बताइए मुझे, क्या 4 साल का बच्चा ये देख नहीं रहा है? उसको पता नहीं लग रहा है? हम कैसे समझ लेते हैं?
आजकल बच्चे, मैम छोटे बच्चे ज़्यादा होशियार हैं इन बातों में, वो स्कूल में डिस्कस करते हैं। कई कई बच्चे हम लोगों के पास आते हैं, हमारी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास आते हैं और कहते हैं कि भाई मुझे डर लगता है क्योंकि शाम को रोज़ घर में लड़ाई होती है। 6 साल का बच्चा अपनी टीचर से कहता है कि मुझे अपने घर ले चलो, मेरा घर मुझे डर लगता है। क्योंकि उनको शायद एक कच्ची उम्र में, जब मानसिकता पूरी अभी पकी नहीं है, उनको जिंदगी एकदम हताश लगने लगती है, क्योंकि आवाजें ज्यादा हैं, अपनापन नहीं लगता है। मान लिया प्यार बहुत है, मान लिया बहुत प्यार मोहब्बत होता है, लेकिन आपस में बैठ के हंसना, खेलना, अंताक्षरी खेलना, थोड़ा बहुत बैठ के कुछ गेम्स खेल लेना, बच्चों के साथ बच्चे बन जाना, और बड़े बच्चों के साथ, किशोर अवस्था के साथ कुछ टॉपिकल बातें करना, कुछ इश्यूज पे डिस्कस करना, हमने बिल्कुल छोड़ दिया है। बैठ के अगर कुछ प्रोग्राम भी साथ में देखते थे तो वो तो आप जानते हैं कि वो जमाने खत्म हो गए हैं, कि बैठ के साथ में देखो और डिस्कस करो भाई ये क्या रहा, मजा आ गया आज तो इस प्रोग्राम में। तो ये बातें हमको जबरदस्ती थोड़ी बहुत वापस लानी पड़ेंगी, और तब हो रहा है, और कुछ लोग कर भी रहे हैं। अच्छी बात है कि कैंपस में भी हो रहा है, और जैसा परिवार वैसा कैंपस, जैसा परिवार केयर टेकर्स वैसा होते स्कूल। हैं ना, जो बच्चे केयर टेकर्स के भरोसे भी कभी कभी जिनका लालन पालन किया जाता है, उनकी साइकोलॉजी पे भी ये बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है, क्योंकि वो लोग बच्चे को कई बार काफी डरा देते हैं, उसको चुप करा देते हैं, उसका सर सेल्फ स्टीम ही डाउन कर देते हैं बच्चे का। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जो सर्वेंट्स और जो केयरटेकर्स पालते हैं, कई बार बच्चे विडंबना में चले जाते हैं कि वो किसका सहारा बने, क्योंकि उनको पता है कि पूरा दिन केयरटेकिंग का जो बंदा है, जो लेडी है या कोई केयरटेकर है, वो हमारे लिए बहुत बड़ा अटूट सहारा है, क्योंकि पेरेंट्स शायद बिजी हैं। तो कई बार आपने ठीक कहा, वो अनजाने में किसी तरीके से डरा के रखते हैं कि भाई ये बातें डिस्कस नहीं करनी है, तो वो चीज विडंबना में रह जाती है। तो वो पालन पोषण के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट में बच्चा बड़ा होता है तो वो कॉन्फ्लिक्ट कॉलेज तक दिखाई देती है। कॉलेज में आने के बाद एक आजादी जो होती है वो सहन उस तरीके से नहीं कर पाता, बिकॉज पूरी खुली दुनिया मिलती है एकदम। कई बार आपने भी नोट किया होगा कि बचपन की दबी हुई बातें कॉलेज में दिखाई दे जाती हैं, फ्रस्ट्रेशन निकल आते हैं, कई बार जल्दी में रिश्ते बन जाते हैं। बॉय गर्ल रिलेशनशिप 18-19 साल में हड़बड़ी में बन जाता है, क्योंकि वो वैक्यूम है, एक तलब होती है जो मिली नहीं है बचपन में, वो जल्दी से एक रिलेशनशिप बन जाती है। फिर बच्चे पछताते हैं कि शायद मैंने सोच समझ के बगैर ये रिश्ता बना लिया। तो फिर वो आप जानते ही हैं कि किस तरह की बातें होती हैं, जो कई बार नशे में भी जा सकती हैं, मुठभेड़ हो सकती हैं। तो थोड़ा बहुत हमको करीब से जिंदगी को बदलते हुए जमाने के हिसाब से कॉलेज में भी समझना होगा। इसलिए वक्त हमको मेंटर मेंटी जो है, और क्यों ना हम माँ बाप को या ग्रैंड पेरेंट्स को साल में 1 बार या साल में 2 बार कैंपस में आने की अनुमति दे। ये तो होता है कई सारी यूनिवर्सिटीज में, बाहर भी होता है। क्यों ना एक पेरेंट्स डे या ग्रैंड पेरेंट्स डे बनाया जाए, कोई बुरा लगेगा क्या? आके घूमे पूरे कैंपस में, मिले जुले, एक पारिवारिक माहौल क्यों ना हो। हम अपनी जड़ों को, हम अपने रूट्स को क्यों गंवा दे रहे हैं? जो आपने कहा कि जो मेल मिलाप और मिलनसार भावना है, वो हम क्यों ना वापस लाएं, और कैंपस को एक पारिवारिक माहौल देने के लिए परिवार को भी इन्वॉल्व करें। कम से करें, ज्यादा नहीं, लेकिन अच्छा रहेगा। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वो बीमारियां हैं जो हमारे देश में कभी बहुत ज्यादा मानी ही नहीं जाती थी, आज से कुछ ही साल पहले, जिसको नॉन कम्युनिकेबल बीमारियां, और ये सबसे ज्यादा अभी यंग लोगों में दिखाई दे रही हैं। मतलब आप समझ लीजिए 15 से 45 लोगों के बीच में सबसे ज्यादा ये बीमारियां हैं। ये सिविलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बीमारियां हैं, लाइफस्टाइल की बीमारियां हैं, वर्क लाइफ बैलेंस ना होने की बीमारियां हैं ये। और ये आपको गांव में बहुत कम दिखाई देंगी, बहुत कम दिखाई देंगी। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ड्रग्स, डिप्रेशन, कैंसर, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स और सुसाइड। आप बताइए कि ज्यादा ये गांव में होंगी या बड़े शहरों में होंगी? ये उन देशों की बीमारियां हैं जहां पे इकोनॉमिकल ग्रोथ चोटी पर पहुंच चुका है। आप समझ गए होंगे हम कहां की बड़े शहरों में, बट ये बड़े शहरों में है और छोटे शहरों में कम है। बड़े इसका शहरों मतलब में ये पढ़े लिखे समाज की बीमारियां हैं, ये साक्षर समाज की बीमारियां हैं, शिक्षित समाज की बीमारियां हैं। ये तो फिर पैराडॉक्स हो गया, विडंबना हो गई है भाई। इतनी सारी बीमारियां भी लेके चल रहे हैं।
आज हमारे पास जो सर्वे हैं देश के, मैडम कहते हैं कि कम से कम नहीं तो 12 से 13% बच्चे हमारे मोटापे के शिकार हैं। मोटापा उस देश में जहाँ पे कुछ करोड़ों बच्चों को एक समय का खाना मुश्किल से मिलता होगा, वहाँ पे मोटापे की बीमारी है, और वो भी इतनी ज़्यादा, आप समझ लीजिए करोड़ों में बच्चे हैं। तो ये चीज़ कितना बड़ा विडंबना है। यस सर। आपने डायबिटीज और ब्लड प्रेशर छोटे बच्चों का भी सुना होगा। अब आजकल 14 साल के बच्चे को बीपी की दवाई खा रहा है, डायबिटीज की दवाई खा रहा है। बोर्ड एग्जाम में आपको पता होगा एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ डायबिटीज डिसेबिलिटी माना जाता है, जिसमें इंसुलिन दिया जाता है। ये शहरी बीमारियां क्यों बनेंगी, कहाँ से आई हैं? खाली जेनेटिक तो नहीं है ना, क्या हमारे लाइफस्टाइल से। कहा जाता है कि 4 तरह के खाने हैं, मैदा, आलू, चीनी और तेल। मैदा, आलू, चीनी, तेल, और बहुत ज़्यादा अगर हम तली हुई चीज़ें बाहर की खा रहे हैं तो ये आधी से ज़्यादा बीमारियां तो इन वजह से हैं। कार्बोहाइड्रेट्स और फास्ट फूड और जंक फूड जो आ गया है, थोड़ा सा कंट्रोल आ रहा है, अब सुना है, लेकिन बहुत ज़्यादा यंग लोगों की बीमारियां पैदा किया है। तो ये जो कहते थे मजाक में कि भाई मम्मी और नानी और दादी का किचन बंद होने जा रहा है, क्योंकि वो जो पौष्टिक आहार बनता था वो अब बाहर से खाना आता है रोज़। तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन विकसित बात नहीं है। तो ये रिस्क फैक्टर आप देख रहे हैं, ये आपके पास है ऑलरेडी। रिस्क फैक्टर उन चीज़ों में भी है जो हमारे पालन पोषण और एक पौष्टिक आहार में भी है, कि मानसिक बीमारियां उससे भी बढ़ती हैं। जिस तरह से हम चाल चलन है, एक्सरसाइज नहीं है, मोटापा बढ़ रहा है, योगा नहीं है। मिसेज भी वही टीचर है। तो आप मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मैडम जी, कोई भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपने इतना अच्छा बताया कि जरा इसको पढ़ दें कि आपको कब लगे हम खुद या हमारे आसपास के जो छात्र हैं। अलीगढ़ का उस समय वो सुरेंद्र भी ले लिया ना, नहीं तो अलीगढ़ में। सर जरा माइक बंद कर दीजिए सर जी, जरा माइक बंद कर दीजिए। नहीं तो ट्रांसफर क्या मतलब मालिक नहीं साहब जी, जरा थोड़ा अपना माइक बंद कर दीजिए। मेरिट डिप्लोमा वाला चेंज हुआ था तो ये आलोक जी काइंडली म्यूट योरसेल्फ। सर अपना माइक तो आलोक जी, बोल खुश को आई। आलोक जी काइंडली म्यूट योरसेल्फ। आलोक जी जरा म्यूट कर लीजिए। तो बिफोर वी अभी हम लोग बस अभी इसको एंड करने वाले हैं। मैं आपको ये बता रहा था, या ऑलरेडी आपके पास है ये, आप ये पढ़िएगा, देखिएगा, कहीं ना कहीं इसमें ये चीज़ लिखी है कि कौन कौन से ऐसे टाइप होते हैं जहां हम लोग अपने आप को खुश नहीं समझते हैं। रेजिलियंस ये बहुत बड़ी चीज़ है, रेजिलियंस बहुत बड़ी चीज़ है, यानी कि हम किसी भी मुश्किल से गुजर कर, उसके साथ भिड़ कर, किसी से आजमा कर हम वापस अपनी ज़िंदगी को वर्क लाइफ बैलेंस में वापस ले आए, उसका मतलब है रेजिलियंस। एडवर्सिटी से आप झेल कर वापस आ जाना। हाउ डू वी कम आउट ऑफ एडवर्सिटी एंड बाउंस बैक टू लाइफ? दिस इज होल कल्चर विच ग्रेजुअली वी आर ऑल ट्राइंग टू डेवलप। आपने बहुत अच्छा बताया कि एम्पैथी, संवेदना, कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन, क्रिएटिंग अ कैंपस वेयर हैप्पीनेस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट गोल फॉर एवरीबडी, faculty and student relationship, creating centers of communication, conversation and friends in the corner of the campuses, in the hostels, mentor-mentee programs, ये सब अभी मंत्रालय ने भी रेकमेंड किया और यूनिवर्सिटीज अपने अपने ढंग से बना रहे हैं। बड़ी अच्छी शुरुआत हो रही है। हम भारत वो देश है जहाँ पर कई तरह के डाइवर्स प्रोग्राम्स जो होते हैं, वो डाइवर्सिटी में इतना मज़ा आता है, इतने अच्छे अच्छे कल्चर्ड हैं, फिल्में अच्छी हैं। कई बार आप देखिए कि पोइट्री कितनी बेहतरीन है हमारे देश की। क्यों ना इन बातों को भी हम ह्यूमन ग्रोथ में इन्वॉल्व करें, है ना। आखिर में मैं ये स्लाइड दिखाना चाह रहा हूँ कि आप इसको, ये आपके पास है ऑलरेडी, लेकिन आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जब आप स्लाइड को इस्तेमाल करेंगे किया जाए, प्रमोशन कैसे होगा और किस तरीके से जो स्पार्क या चिंगारियाँ होती हैं किसी की तकलीफ की, मुश्किलात की, या उसको कहीं पर वो कोप अप नहीं कर रहा है या किसी प्रॉब्लम का शिकार हो रहा है, जैसे नशा हो, उसको लेवल 3 पे कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। ये जो SOPs हैं,
स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं जो कैंपस में बनाए जा सकते हैं काउंसलर्स के हेल्प से, फैकल्टी के हेल्प से। ये प्लीज़ आप इसका निर्माण करें, अपने काउंसलिंग सेंटर में ये जरूर बनवाएं और एग्जाम्पलर यानी कि एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल सेंटर्स अपने कैंपसेस में बढ़ाएं। आज देखिए प्रोग्राम MMTC AMU से हो रहा है। AMU का काउंसलिंग सेंटर बड़ा बेहतरीन है और बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है। नसरीन मैम जानती हैं, वी आर सो मच थैंकफुल टू प्रोफेसर फैज़ा मैम फॉर क्रिएटिंग दिस प्रोग्राम एंड ऑल्सो वी आर वेरी प्राउड दैट AMU में इतना बड़ा एक काउंसलिंग सेंटर है जो फैकल्टी के साथ काम करता है। आपके तमाम यूनिवर्सिटीज़ में भी होगा, क्यों ना कलेक्ट करें और एक दूसरे से सीखें, बढ़ाएं, बेहतर करें, जो हर बच्चे की कहीं ना कहीं आइडेंटिफाइड इश्यूज को टच कर सके। और लास्ट वाला जो आप देख रहे हैं लेवल 4 जो एकदम बॉटम पे है, वो उस कैटेगरी के बच्चे हैं जहाँ पे उनको अर्जेंट हेल्प की ज़रूरत है, यानी कि आपके मेंटल हेल्थ के जो सपोर्ट प्रोफेशनल्स हैं या बाहर से जो मेंटल हेल्थ सपोर्ट सिस्टम है उनसे हेल्प की मिले। तो एक यूनिवर्सिटी मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो होता है उसका संपूर्ण निर्माण के लिए ये स्लाइड काम आती है। इसके बियॉन्ड कभी भी कोई गाइडेंस चाहिए हो, कोई हेल्प चाहिए हो, कोई किसी तरीके का निर्माण करने में आइडियाज चाहिए हो, आपको मिल जाएगा। आके दिया है कि फोकस एक एब्रीविएशन है, फोकस एक एक्रोनिम है जिसका मतलब यूनिवर्सिटी के कैंपस में अगर आप डाइवर्स प्रोग्राम बनाते हैं वेलबींग और मेंटल हेल्थ को बढ़ाने के लिए, वो इन 5 कैटेगरीज में बनाइए और भी ऐड करिए। लेकिन इसका मतलब ये हुआ फैकल्टी और स्टूडेंट्स के लिए। ओलंपियाड्स जो होते हैं वो वेलबींग के क्यों ना हो, वेलबींग क्लब्स क्यों ना हो जिसमें कॉन्फ्रेंसेज हों मेंटल हेल्थ पे, वेलबींग के क्रिएटिव आइडियाज़ फ्रॉम स्टूडेंट्स लिए जाएं और उनको फैमिलीज़ को बुलाकर, अपने पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को बुलाकर कहीं ना कहीं फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स भी किए जाएं। तो फोकस इज़ अ एब्रीविएशन। आप ये वाली स्लाइड और आप ये वाली स्लाइड को मद्देनज़र रखते हुए अपने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक वेलबींग कल्चर और वेलबींग सेंटर ऑफ द यूनिवर्सिटी का निर्माण करना शुरू करें। तो इसी के साथ हम आज इस चर्चा को समाप्त करते हैं। आपकी राय, आपका जो एक्सपीरियंस आपने शेयर किया बहुत अच्छा लगा, लेकिन अभी हमारे पास थोड़ा वक्त है। आई एम श्योर विद डॉक्टर फैज़ा एंड डॉक्टर नजरीन वी विल बी एबल टू, या आप देखिए एक रोड मैप क्या है, एक रोड मैप इसी को पूरा करता है। समरी क्या है आज की समरी क्या है, आज का निष्कर्ष क्या है? हमारे पास वंश है, हमारे पास टास्क है, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है। वी ऑल हैव ह्यूमन रिसोर्स, वी हैव द टास्क, वी हैव एवरीथिंग विद अस। We need to enrich the climate of psychosocial well-being in our universities. आप strategic planning करिए, अपने human resource को mobilize करिए। Life skills, जीवन कौशल, इसके ऊपर कई सारे हमारे पास workshops और ये सब available हैं। Inside the university campuses हम क्यों ना फर्स्ट ईयर के सेकेंड ईयर के बच्चे को mental health से related life skills develop करें, जिसको आप 21st century social emotional skills कहते हैं। सोशल कनेक्टिविटी की बात आज बड़ी अच्छी हुई है फैमिली लेवल पर, फैकल्टी लेवल पर। और स्टूडेंट्स जो रिस्की हैं, जिनके मानसिकता पर रिस्क आई हुई है, उसको आइडेंटिफाई करें, उनको हेल्प करें कि वो हेल्प लें, बच्चों को हेल्प करें कि वो हेल्प लें। मेंटल हेल्थ एडवोकेसी और प्रोग्राम्स का निर्माण किया जाए। सब्सटेंस यूज़ के बारे में प्रिवेंशन सर्विसेज और जानकारी समझदारी के वर्कशॉप्स इंटेंसिवली होने चाहिए। और जैसा भी आपको बताया, मिनिस्ट्री भी करवा रही है वेलबींग के ओलंपियाड, वेलबींग के कॉम्पिटिशन, तो वेलबींग के फेस्टिवल्स किए गए। वापस मैं इस पे आ गया हूँ। आप ये रोड देखें, आज हम कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम पर हैं। लेफ्ट साइड में जो है, आगे आने वाले टाइम पे आप अपने सेंटर्स बनाइए और यूनिवर्सिटी के निर्माण में ये जो सड़क है, ये लाइफ स्किल्स और रेजिलियंस की सड़क है और ये ज़रूर एक सफलता की तरफ हम सबको लेके जाएगी। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज हमने सब लोग ने ज्वाइन करके यहाँ पे इसको इतना अच्छा एक मौका दिया हुआ। एक सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट बनाने का टाइम आ गया है, जिसमें बड़े पैमाने पे जो हमारी बातें हुई हैं, कुछ पैमाने पे वो टारगेट हैं जो स्टूडेंट्स और फैकल्टी को मदद की ज़रूरत है, और इंटेंसिव केयर को जहाँ ज़रूरत है, यानी कि जहाँ पे समस्या गंभीर है वहाँ C और D फैक्टर है। ये 4 बबल्स में
एक तरीके से ये भी एक तरीका है। मैंने आपको वो ट्रायंगल दिखाया जो मेन वही है, उसी का एक दूसरा रिप्रेजेंटेशन पिक्चर ये है ना। आपके आइडियाज जो भी हों, आपके सजेशन जैसे भी हों, मुद्दा तो आप जानते ही हैं, लेकिन मुद्दे को आगे ले जाने के लिए हम सब मिल के करें तो इसका सक्सेस रेट बड़ा अच्छा होगा। अब आप ये देखिए, एक छोटी सी बच्ची एक बोझ किसी का उठाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनको लगता है कि ये बोझ हट जाएगा, लेकिन उनकी नादानी शायद इस बात को नहीं समझ रही है कि केवल उनके हाथ में नहीं है, हम सबको मिलकर करना होगा। और मेंटल हेल्थ केवल साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के हाथ में बिल्कुल नहीं है, ये मैन पावर हमारे देश में बहुत कम है। मैं समझता हूं कि फैकल्टी से बेहतरीन काउंसलर्स और फैकल्टी, तमाम फैकल्टी से बेहतर सपोर्टर कौन हो सकता है। आपके अंदर जो काउंसलिंग सेंटर है वो मिलके आपके साथ किसी ऐसे विषय का निर्माण करे, उसका ही सपोर्ट अब मंत्रालय भी दे रहा है। और हम क्यों ना मेंटल हेल्थ को बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट पोजीशनिंग दें, बिकॉज मानसिकता रहेगी तो जीवन का रूपरेखा जो है वो आगे बढ़ने के लायक भी रहेगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ आप सर यहाँ पे थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। कुछ और हैं, आप जरा प्लीज अपना कुछ तजुर्बा शेयर करना चाहे बताइएगा। सर मुझे एक चीज शेयर करनी थी कि आजकल जो है सर, आजकल ना लेडीज भी वर्किंग है, तो ये आज भी है कि ट्रेडिशनली औरतों का ही काम था कि फैमिली का ध्यान रखें, इसीलिए भी बच्चों पे उतनी अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि एवरीबडी फील्स कि माँ का ही काम है, माँ ही कर सकती है। और जबकि कंबाइंड एफर्ट होना चाहिए, अगर बच्चे के ग्रैंड पेरेंट्स भी है तो भी वो कहेंगे माँ ही देखेगी बच्चे को। तो बिल्कुल बहुत बड़ी बात कही है आपने, बहुत बड़ी बात। नॉट लाइक कि आपकी जॉइंट फैमिली है तो बच्चों पे ज्यादा अटेंशन है या ऐसा कुछ है, इट्स जस्ट दैट कि ये जेंडर रोल्स की वजह से भी हम अच्छी परवरिश नहीं दे पा रहे हैं बच्चों को। मैं क्या कहूँ मैम, आपने बिल्कुल दिल की बात कही है और बहुत अच्छा कहा आपने, बिकॉज जेंडर रोल्स क्या मैम, जेंडर तो अब ह्यूमन राइट्स इश्यू है, इट इज नॉट अबाउट वुमेन राइट्स, इट्स अबाउट ह्यूमन राइट्स। सो हर शख्स का, हर इंसान का, हर पढ़े लिखे इंसान का ये अधिकार है कि उसको अपना अस्तित्व, अपनी पहचान, अपना अस्तित्व का एक मौका मिले। और क्यों ना, हम तो वो देश है अब जब हम बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ का आंदोलन कर रहे हैं। तो आपको ये भी बता दूं, हमारे कई साइकोलॉजिस्ट हैं जो हमारे साथ काम करते हैं देश भर में, और वो भी कहते हैं कि भाई अब हमें शायद नौकरी छोड़नी पड़ेगी क्योंकि घर के काम देखने हैं। तो मैं तो आपकी बात से सहमत हूँ कि ये तो एक हम सबको मिलकर संघर्ष करना होगा कि भाई काम भी चलेगा और आपका काम भी, नौकरी भी चलेगी, क्यों छोड़ना। कई सारे बच्चे ऐसे हैं सर जिनके पेरेंट्स ने अपने रिलेटिव्स पे ट्रस्ट किया, बाद में पता चलता है बच्चे के साथ सेक्स अब्यूज हो गया। आप उसको एक पॉजिटिव ले रहे हैं, लेकिन चाचा मामा वो रिलेशंस भी इतने सिक्योर नहीं है। हम केयर टेकर्स को क्यों ब्लेम करें, बाकी सब भी अनसिक्योर है। और ये बच्चे का सर आई वुड से लक फैक्टर है कि वो किस माहौल में बढ़े। कई बार पेरेंट्स बहुत अब्यूजिव होते हैं फिर भी बच्चा बहुत कामयाब है, एंड वाइस वर्सा। वो जिंदगी उसने अपने रेजिलियंस से उसका संघर्ष किया ना मैम। आपने तो ये बात कही है। आज आपसे मैं ये सवाल पूछूं कि पॉक्सो की जरूरत क्या थी हमारे देश को, बताइए। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट ऑफ 2012 एंड मॉडल गाइडलाइंस ऑफ 2016। पॉक्सो के बनने में मैं शामिल था, और पॉक्सो का जो सर्वे था, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज सर्वे ऑफ इंडिया, उसमें भी मैं था। और मैं आपको बता रहा हूँ, आपने टॉपिक रेज किया है, जरूरत ही क्या थी, क्योंकि आज भी 50% से ज्यादा अगर शोषण होता है तो वो पारिवारिक माहौल में था। अब सुन में आया कि शायद परिवार के माहौल में कम होगा क्योंकि अब कानून आ गया है। पहले 10 साल पहले कानून कहाँ था बताइए, 12 साल पहले। और ये तो पीढ़ाएं चलती आ रही हैं। ये चर्चा तो अब उठी है ना, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स बनाया गया, केवल आज 17 साल हुए हैं। 17 मतलब हाँ 18-19 साल हो रहे हैं। मतलब न्यू सेंचुरी के ये निर्माण है। नहीं तो आप सोचिए कि अगर चाइल्ड राइट्स कमीशन नहीं होते हमारे देश में, हर राज्य में स्टेट कमीशन ऑफ चाइल्ड राइट्स हैं, यानी कि कहीं भी मेरे साथ कुछ वायलेशन हो रहा है, मैं बच्चा हूं, मैं बच्ची हूं, शोषण हो रहा है, मेरे पास कोई नंबर है जो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट तक नहीं, हर जगह पर मेरा इशारा पहुंच सकता है और मुझे मदद मिल सकती है। बहुत अच्छा। Sir, I have one more question, sir.
हम ये फैमिली के बारे में इतना बात कर रहे हैं, सोशल सर्कल के बारे में इतना बात कर रहे हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं कि भाई टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन आजकल ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जहाँ पे स्कूल्स और कॉलेजेस में टीचर्स ही बच्चों का शोषण करते हैं। यस, आई एग्री तो विद यू। उसके लिए सर हमें एक अपने स्कूल्स, अपने जो फैकल्टीज होती हैं, क्या पहले हमें उनके वेलबींग के बारे में नहीं सोचना चाहिए? हमें उनका साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी तो जरूरी होता है, उनका टाइम टू टाइम, कि भाई ये मेंटली स्टेबल है या नहीं है, ताकि बच्चा सफर ना करे, क्योंकि उसकी पूरी लाइफ खराब हो जाती है। आवाज नहीं आ रही है। बहुत बहुत बेहतरीन सुझाव दिया आपने मैम। इनफैक्ट ये जो आज 1.5 घंटे की चर्चा है, मैं समझता हूँ ये हमेशा कम रहेगी, और मेरा आपसे निवेदन है हाथ जोड़ के कि आप इसी बात को आप ईमेल में लिखिए, और हम तो चाह रहे हैं, इसीलिए MMTCs के साथ, सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट के साथ पहली बार मानसिकता के बारे में चर्चा शुरू हुई। और मैं एक क्रूसेडर हूं, जो मैं समझता हूं कि टीचर एंड फैकल्टी मेंटल हेल्थ, बोथ स्कूल टीचर्स के लिए और फैकल्टी के लिए, हम सब की मेंटल हेल्थ के लिए भी तो ज़रूरी है कहीं ना कहीं साधन होने चाहिए, क्योंकि केवल स्टाफ रूम नहीं होता है। स्टाफ रूम में अकेला एक जगह नहीं है जहाँ पे आप सारी बातें शेयर कर सके। काउंसलर्स जो आपके सेंटर में हैं, क्यों ना 1 या 2 काउंसलर्स केवल हम फैकल्टी के लिए हों, क्योंकि मेरी कोई निजी बात है वो सारे स्टाफ रूम को पता लग जाएगी, मुझे जाके साइकोलॉजिस्ट से मिलना है, सबको पता लग जाएगी। ये डर होता है फैकल्टी को भी। बच्चे के लिए भी ये कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत जरूरी है कि मेरी पर्सनल बात उछाली ना जाए स्कूल में। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और ऐसे ही सुझावों के साथ अच्छा तो ये हुआ है कि कम से कम आज जो हमारी चर्चा हो रही है केवल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये फैकल्टी के लिए भी है, कैंपस के लिए बात हो रही है। कैंपस में सबसे प्रथम इम्पोर्टेंट व्यक्ति जो है वो टीचर है, उसके साधन से बच्चे बड़े होते हैं, उसके नॉलेज और स्किल्स और ज्ञान से ही तो बच्चे आगे निकलेंगे। तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि फैकल्टी का संतुलन, बीमारी की बात छोड़ो, फैकल्टी का संतुलन, उनका व्यवहार, खुद भी उनकी अपनी पारिवारिक जिंदगी कैसी है, उनका भी तो एक कहीं ना कहीं बॉक्स होना चाहिए, ग्रीवेंसेस बॉक्स, जो वो आपस में कहीं पे कर सके। आप सुझाव दीजिए, इतना बड़ा कैंपस है। मेरा तो ये कहना है कि फैकल्टी के दरबार क्यों नहीं है। मैं इंस्टीट्यूशन के कोई नाम नहीं लेना चाहता, ना मुझे पता है, लेकिन आप मुझे बताइए ऐसी भी जगह है जहाँ पे फैकल्टी एक दूसरे को जानते ही नहीं है, सोशल लाइफ ही नहीं है बिल्कुल भी, कैंपस पे मिला नहीं, एक दूसरे की फैमिली को नहीं जानते हैं। अगर मैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट का हूँ और आप सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के हैं, क्यों ना हम लोग साल में 2-3 बार मिलें, केवल अपनी रिसर्च और अपने आर्टिकल्स पब्लिश के क्यों बातें करते हैं। हम अपने फैमिली की बात करें, अपने एक क्रिकेट मैच करें, हम इंडोर गेम्स का मैच करें, हम अंताक्षरी खेलें। आवाज नहीं आ रही सर बिल्कुल भी। क्यों आवाज क्यों नहीं आ रही है? आवाज तो आ रही है सर, तो आ रही है, मेरे पास आ रही है। हमें सुनाई अपना दे सेट रहा चेक है। करिए। आवाज क्लियर है, आवाज क्लियर है। आवाज आ रही है सर, आ रही है, आवाज आ रही है। तो मेरा ये निवेदन है कि इस प्रोग्राम को आप सिर्फ एक न्योता समझिए आपके सुझाव का। आई विल बी वेरी हैप्पी, आप नसरीन मैम को बताइए, उनको लिखिए, फाजिया मैम को लिखिए, या हमें भी लिख सकते हैं। सर मैं कहना चाहूंगी, हम यहाँ पे बहुत से अभी जो ये प्लेटफॉर्म हमको मिला है, तो मैं कहना चाहूंगी सर कि जो हम टीचर हैं तो 5 मिनट या 7 मिनट अपने स्टूडेंट के लिए जरूर निकालें, कि जिससे हम उनको ऑब्जर्व करें कि कौन सा बच्चा कैसा है। सर मैंने खुद देखा, मैं 5 मिनट 7 मिनट में जरूर बच्चों को देती हूँ, और विशेषकर गर्ल्स को देती हूँ। तो उसमें सर बहुत कुछ देखने को मिलता है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बोल भी नहीं पाते और लिखते बहुत अच्छे हैं, समझते हैं, लेकिन वो अपनी बात रख नहीं पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं फैमिली में भी वो उनका थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। तो अगर हम उनको आगे लाएं, ऐसे बच्चों को अगर हम आगे लाएं और उनको थोड़ा सा अपना टाइम दें, तो हम लोग थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन हमारा सोसाइटी के लिए होगा सर। ये थोड़ा बहुत हम भी बहुत बहुत शुक्रिया मैम। आपने मन की बात ही तो कह दी। देखिए सारे सुझाव तो आप ही के पास हैं, आप सबके पास हैं, मैं नोट भी कर रहा हूँ, और मेरा वादा है कि ये कल सवेरे तक मंत्रालय में ये बातें चली जाएंगी, आप पता कर सकते हैं, क्योंकि हम सब इसी जगह पर इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमें परिवर्तन लाना है। और मैं समझता हूँ एक बेहतरीन स्कूल कल एक बेहतरीन कॉलेज बनता है, और कितने सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके कैंपस में उसी नाम का स्कूल भी है और उसी नाम का कॉलेज भी है। और क्यों ना ये बातें जो स्कूल के बच्चों के लिए लागू होती हैं वो हमारे और बच्चों के लिए भी लागू होंगी ना। वो जो 5 मिनट आप दे रहे हैं ना मैम, कई जिंदगियां बचा लेगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। बच्चे कहते हैं कि वो टीचर केवल वो सामने वाले 5 बच्चों पे ध्यान देती हैं क्योंकि वो क्लास के टॉपर्स हैं,
और हम लोग हमेशा जिंदगी के बैक बेंचर रह गए, लेकिन वो भी बड़े सक्सेसफुल होते हैं लाइफ में। तो आपने बहुत अच्छी मुद्दे की बात कही है। 5 मिनट आप अपनी नजर से, आप अपनी 2 आंखों से ना 40 आंखें देख लीजिए, उनकी जिंदगी बच जाएगी, संवर जाएगी। और वही आप करते होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। यू आर टचिंग द हार्ट्स एंड द माइंड्स ऑफ ऑल 40 पीपल और 60 पीपल इन योर क्लास। आम बातें कर लें, वे आज की मौसम की बातें कर लें, आज एक बात कोई चुटकुला ही बोल दें और उस पर सब मिलके हंस लें। एक बार खड़े होकर थोड़ी एक्सरसाइज कर लें, हम सब क्यों ना ऐसा कर लें, एक लंबी सांस ले लें। जैसे सवेरे उठने के बाद हम उबासी लेते हैं, हम क्यों ना क्लास में चौड़े होकर जरा एक लंबी सांस ले लें और फिर हम खुशी से मैम की क्लास सुनें। तो 5 मिनट स्टार्टिंग में और 2 मिनट एंड में पढ़ाई की बातें ना करें। जी। मेरा तजुर्बा यही है। जी सर। मैंने आपका पॉइंट नोट किया है, और आप और कुछ है तो बताइए। तो 2 मिनट अभी और भी हैं हमारे पास, अगर नसरीन मैम परमिट करें। सर मेरा एक सवाल है। जी सर बताइए। हाँ सर, जैसे रचना मैम ने भी कहा कि कुछ बच्चे अपने आप को मतलब बोल नहीं पाते या शिक्षक से बचने की कोशिश करते हैं, दूर जाने की कोशिश करते हैं, वो अपना जो पर्सन भी नहीं पूछ पाते या हेजिटेशन करते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए वो शिक्षक को अधिक से अधिक जो बच्चा करीब आए या बोल पाए अपनी बातों को, तो क्या किया जाए? ये मतलब जो एक शिक्षक के लिए क्या जरूरी है? सर अगर देखिए, मुझे तो 2 बातें याद आती हैं। एक तो जो रचना मैम ने कहा बहुत ही अच्छी बात है कि हम ओवरऑल मैक्रो लेवल पे पूरी क्लास को कनेक्ट करें, हम केवल नहीं आपस में भी। दूसरा जो आपको लगता है कि मेरी हर क्लास में ये बच्चा या ये 2 बच्चे थोड़े से खामोश मायूस रहते हैं लेकिन इनका ज्ञान अच्छा है। देखिए स्कूल में भी ये होता था ना, इंट्रोवर्ट कुछ बच्चे होते थे लेकिन थ्योरी पेपर बड़ा अच्छा लिखते थे, है ना। बच्चों को कभी आप क्लास से बाहर निकलते हैं, प्यार से बुला लीजिए, याद रखिए उसके पूरे नाम से बुलाइए। कई बार हम पिट्टू, नक्कू, मोटू, लड्डू बुलाते हैं, बच्चों को अच्छा नहीं लगता है। उनके नाम से बुलाइए। तो आपको स्टाफ रूम की तरफ ले जाते हुए कॉरिडोर में जरा बातें करते हुए जाएं। पर्सनल कम्युनिकेशन बच्चों को बहुत बड़ा सहारा मिलता है। आप 2 मिनट कह सकते हैं, नारायण कैन आई वॉक विद यू फॉर अ मोमेंट टुगेदर एंड हैव अ टॉक विद यू। अब देखिए बच्चे की जिंदगी बदल जाएगी। आप पर्सनल टच कर लें, आपको इन द सेंस के उसके मन की बात थोड़ी दिन के लिए कर लें 5 मिनट, और उनको ये बोल दें कि मैं 2-4 क्लासेस से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि तुम कुछ बहुत बेहतरीन बोलना चाहते हो, शायद हिचकिचा रहे हो, शायद तुम्हारे अंदर कुछ भावना है जो भर के नहीं आ रही है। मेरे पास ऐसा कोई बच्चा आज तक नहीं है सर जहाँ पे हमने देखा ना हो कि वो अकेले में सेपरेटली आपको जरूर बताएगा कि वो सवाल का जवाब मेरे पास था लेकिन मेरे को शर्म आ रही थी कि दूसरे बच्चे मेरा मजाक ना उड़ाएं। तो एक पर्सनल चीज से हो जाता है। दूसरा, कभी कभी जैसे आप एक क्लास जब पूरी करते हैं या कोई प्रोजेक्ट होता है, खासकर नाम लेके बच्चे को स्टेज की तरफ बुला लें और उसको बोल दें, आओ मेरे पास आओ, यहाँ पे खड़े होके तुमको पता है कोई जवाब क्वेश्चन का टेक्निकल जवाब भी आप उसको सबके सामने उसकी तारीफ करते हुए, उसकी नॉलेज और उसकी शैली की तारीफ करते हुए उसको प्रॉम्प्ट करें। जो कहते हैं ना कि एक समर्थन दें और सहारा दें, वो जरूर बोलेगा। वो हो सकता है एक लाइन कम बोले, लेकिन वो दिन और आपका जो जेस्चर है, आपका जो एक्शन है उस वक्त का, वो जिंदगी भर याद रखेगा कि तमाम क्लास के सामने मेरी तारीफ भी हुई है। और हो सकता है वो जो डर है ना सर, वो धीरे धीरे टूटना शुरू होगा। तो कई लोग जो इतने बड़े पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है सर। मेरा ममता नाम की स्टूडेंट थी सर, और मैंने उसे एक बार सर वो बोलती नहीं थी, मैंने कहा बेटा कुछ भी पढ़ लो, तुम बहुत अच्छा पढ़ रही हो सर। वो अप्रिशिएट किया तो उसने बोला सर मुझे उस दिन बहुत खुशी हुई कि वाइवा था और सबसे अच्छा वाइवा उसने दिया, बहुत अच्छा बोली वो। तो बहुत अच्छी, मतलब सर हमें भी बहुत खुशी होती है। वो चीज दोनों के लिए है। वो तो हो ही, बच्चे तो लाभान्वित हो ही रहे और हम उससे ज्यादा होते हैं सर, क्योंकि बहुत हैप्पीनेस देती है हमको चीजें। तो और एक बात जो आप बता रही है मैम, आपने जरूर ये भी किया होगा, आपने आम क्लास में ना पूरे क्लास के सामने ऐसे बच्चों का कभी निरादर भी नहीं किया होगा। नहीं सर, वो एप्रिशिएट ही करना पड़ता है सर उनको, उनकी प्रशंसा करके ही वो आगे बढ़ते हैं। और आप जानते भी हैं कि वो थोड़ा सा इमोशनली कमजोर है, लेकिन कभी भी किसी के सामने, ये तो मैम घरों में 2-2, 3-3 भाई बहनों के बीच में भी हम लोग गलतियां कर बैठते हैं, है ना। उसके सामने उसको कॉम्प्लेक्स आ जाता है फिर। तो तारीफ जरूर करिए, लेकिन किसी और की
गलतियों का जश्न मत बनाइए। जैसे कई बार हमारे साथ भी बचपन में टीचर्स कई बार कर बैठते थे, लेकिन हमें फिर बाद में रियलाइज हुआ कि वो वाला जो था वो शायद वो थोड़ा प्यार वाला था, लेकिन आजकल बच्चे सहन नहीं करेंगे ना वो बातें। उनको लगता है कि देखो मेरे सामने पूरे क्लास के सामने इन्होंने बोला कि ये तो बुद्धू रह जाएगा, ये तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो उसको आप पहले तो उसकी कोई भी कमी हो उसको कमी के जैसे मत हाईलाइट करिए। जी जी। मुझे लगता है कि हर इंसान में, यहाँ तक के दिव्यांजन बच्चों में भी, जो डिसेबिलिटी के बच्चे हैं उनमें आप जानते हैं कितना टैलेंट होता है। टैलेंट होता है सर बहुत। बच्चे आर्टिफिशियल टांग से भी मैम डांस कर रहे हैं, अब बताइए, हमने देखा है ना, भरतनाट्यम कर रहे हैं और टांग नहीं है उनकी, और वो आर्टिफिशियल लेग के साथ कर रहे हैं। इतना प्रोत्साहन तो टीचर ने दिया ना, डांस टीचर ने दिया। जी सर, जी सर। तो आप कहीं ना कहीं, हर बच्चे के अंदर एक कलाकार है, एक कार्यकुशलता है। हम बस क्लास में ये डिक्लेयर कर दें कि हाँ भाई, कोई थोड़ा इंटेलिजेंट होगा, कोई थोड़ा इंटेलिजेंट सामान्य होगा, लेकिन प्रशंसा और प्रतिभा हर बच्चे में है। प्रतिभा और प्रशंसा हर बच्चे में है। टैलेंट हम सब में है। हो सकता है मेरा IQ आपसे कम होगा, लेकिन हम सब टैलेंटेड हैं। और जिंदगी में तो आप भी सब देख चुके हैं कि टैलेंट काम आ रहा है, शायद इंटेलिजेंस उतना काम ही नहीं आ रहा है। तो आगे चलने के लिए थैंक यू सो मच। आप जरूर थैंक यू सर। थोड़े जवाब हो तो आप जरूर। थैंक यू सर। सर हम उम्मीद करेंगे वापस आप हमें समय देंगे। जरूर सर, जरूर। थैंक यू मैम, नाइस टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू। very much. आप You जरूर have फीडबैक दीजिएगा। in such interesting way. I am really grateful to you, and all the teachers are requested to take these suggestions in the classroom, in the family, in the society also. So really wonderful session. थैंक यू मैडम। Thank you very much, sir. Jiten Nagpal ji. Thank you. धन्यवाद सर। थैंक यू मैडम। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। समाप्त होता है। अब हम कल आपसे फिर मिलते हैं अर्ली 9 बजे। कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Namaste, ma'am. Thank you.